हालांकि बड़े कोसते हो आप लोग कांग्रेस पार्टी को, एंड हु इज द हाई कमांड, व्हाट आर दे हाई ऑन, द बीजेपी गाइस से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. माय पॉइंट इज आपकी पार्टी में भी तो हाई कमांड है ना, एंड योर हाई कमांड इज ओनली 2 people. So even within the BJP, only 2 people are taking all decisions: Prime Minister Modi and Amit Shah, the Home Minister. Okay. So if in their party that is the case, I disagree. I I disagree. Shreya, you have to allow me this. I disagree, and I'll tell you why. I disagree because we have a party structure which is disciplined in our party. I openly said, if you are going to publicize an issue and you're going to wash your dirty linen in public, you're going to fight in front of us, you're going to give media reactions visible to the whole world and tweet against each other, visible to the whole world is going to comment. Tell me when has it happened in the Bharatiya Janata Party? It never has. And can you predict the next president after Nitin Nabin ji? You cannot. So Yash. Congress hierarchy and their high command system cannot ever be compared to the Bharatiya Janata Party. Yash. Yeah, thank you, Shreya. Thank you so much. See, one thing I would like to ask Ashutosh ji, what do you define as who is a leader in the Congress party? So if you don't think Mumtaz is a leader, let me tell you myself. I was the chairman, the head for party's international youth wing. I was party's legal cell head, and I was been in charge of a lot of states. And I've left the party when I was on appointment. I had no interest of running elections. I had nothing. I just had discontent with the party's functioning because of how the party works. It has no democracy. There is no denial in that. The dynastic politics to marginalization of discontent in the party, to centralization of decision making. You know, the biggest thing is the exploitation of youth, which happens in Congress, is something very serious, and I would want to speak about that. If you see youth Congress elections by themselves, they call it democratic, but I've seen over a period of time where the people who have their votes have been changed in hours. When the election result was announced of different states, the election result came out as someone else winning, but they would change under pressure into someone else winning. When you go to realize there's a money involved, and there's a young person who's putting a lot of money in these elections, the youth comes in, and after the work is done, we barely see Congress taking charge of its own people. Whereas you're talking about Mr. Tharoor, or you're talking about Mumtaz herself, I think Mumtaz comes from a family where she has all the rights to speak about Congress. Her father has given his life to the party. And if she's standing straight and still calling Rahul Gandhi as a leader, of course, the democratic values of speaking about a party is given by the country, by the constitution of this country, which everybody carries around. Sanjeev ji, therefore I ask you, it's not like Mumtaz Patel is joining the BJP. She's still saying that Rahul Gandhi is my ultimate leader, but she's also saying that I've been waiting for 1 year. I have not got an appointment from him. This BJP Odisha MLA said, I have for the last 3 years been asking Rahul Gandhi for an appointment. I have not got that appointment. Himanta Biswa Sarma, who used to be with your party at one point of time, and with your party, I mean the Congress party, had famously said that Rahul Gandhi had more time for his dog Piddi than he had for me. I'll also like now, to tell is this how leaders behave? There is a leadership crisis. In fact, she's even talking about Priyanka ka camp and Rahul ka camp now in the Congress party. Now, let me also tell you one thing. Ek minute. Let Sanjeev Kaushik ji come in. श्रेया मुमताज पटेल के उस स्टेटमेंट पे हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं जो मुमताज पटेल ने कहा नहीं। नाविका कुमार जी ने मुंह में उंगली डाल करके जबरदस्ती वो शब्द बाहर निकलवाया, हाँ बोलिए ना बोलिए, और उसके बाद में वो बोली। 3 बच्चों की माँ है मुमताज पटेल, उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। सांसद और 5 बार के मेरी बात तो सुनिए ना। 3 बार के सांसद और 5 बार के राज्यसभा सदस्य रहे अहमद पटेल। कांग्रेस पार्टी के प्रति कितने लगन और ईमानदारी के साथ वो काम करने वाले थे। मैनेजमेंट क्राइसिस वो मैनेज करने वाले वैसे लोगों के तौर पे उनको जाना जाता था। आज उनकी बेटी, उदाहरण भरे पड़े हैं। जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो सत्ता में रहने वाले लोग या हमेशा सत्ता के करीब रहने वाले लोग वो भरूच में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है। पिछली बार ठीक आपने कहा अपने रिपोर्ट में कि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की वजह से वो वहां पे उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो वो कोशिश कर रही है, युवा है, यंग है, लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो लोग सत्ता में बने रहने की कोशिश में हमेशा रहते हैं वो सत्ता से बाहर निकलने के बाद में बहुत मुश्किल होती है। हमने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन उनको जाना था, सत्ता के करीब जाना था, सत्ता के साथ रहना था, मंत्री बनना
बनना था तो वो गए, तो जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। भूमिकाएं बांधी जाती है, लेकिन सबों के बावजूद आप जो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कांग्रेस के लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र का ये उदाहरण है कि इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के इंटरव्यू देने के बाद में भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछे गए। बताना बोलना है बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। कोई कमियां दिखाई दे रही है तो उस कमियां पर चर्चा कीजिए, आप बताइए, और निश्चित तौर पर उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज के वक्त में चूंकि सत्ता में नहीं है, केंद्र में नहीं। संजीव जी, आपने सुना कि आपके अपने एलाइज क्या बोल रहे हैं? आपके अपने एलाइज बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आज मुमताज पटेल के इंटरव्यू के बाद आप लोग तो मुमताज पे उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं नविका जी ने जबरदस्ती जो उनको बोलना भी नहीं था वो बुलवा दिया, और इनके हस्बैंड पे तो केसेस हैं इसलिए ये बीजेपी की लैंग्वेज बोल रही है। लेकिन आपने सुना कि आपके अपने एलाइज क्या बोल रहे हैं? कि सुनिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्योंकि जो मुमताज बोल रही है संजीव जी, वो कांग्रेस वाले ऑन द ग्राउंड बोलते हैं कि लीडरशिप मिसिंग है। कहां रहती है, क्या करती है, कब करती है, कुछ समझ नहीं आता है। ये वही लीडरशिप है जिसको आप पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में बिल्कुल खत्म कर देने की जिसको बात थी कि अब दोबारा उठ के खड़ा होने तक की नौबत नहीं आने देने वाले थे। उसी इलेक्शन में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में, अगली चुनाव में जहां खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, 100 के करीब दुगुनी ताकत से वापस बाहर आए। आप जिस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, भड़काने के लिए, उस पर फोकस बनाने के लिए, अभी तो हुआ है बिहार भूल गए। आप भी दिल्ली में रहते हैं ना, यही होता है पोल्यूशन के साथ, सब गजनी बन जाते हैं। बिहार भूल गए, हरियाणा भूल गए, महाराष्ट्र भूल गए। नहीं, मैं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने भी, आपके चैनल पर हम बैठे थे हरियाणा के लिए काउंटिंग के रोज, किस तरह से आधे घंटे के अंदर में सारा मौसम माहौल बदल गया, क्या था पहले और क्या बाद में हो गया, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने उन संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, ये गलत है निश्चित तौर पर। और चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो सबको संतुष्ट करने के लिए उसके पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, कि संतुष्ट किया जाए। जिसको जाना है वो जाएगा ही। You know, Mr. Kaushik, while I understand what you're saying, and I do think there is some logic to what you're saying, the point is, how long has the Karnataka crisis been brewing? कम से कम 1 साल तो हो गया डीकेएस और सिद्धरमैया को लड़ाई करते हुए पब्लिकली। उसका आज तक समाधान हुआ है? नहीं। आज भी खड़गे जी आके बोल रहे हैं हाँ हम देख लेंगे, हम सॉर्ट आउट कर देंगे। भैया ये कैसी लीडरशिप है? कर क्या रही है? जो आप, मतलब आप कितने स्टेट्स में इस समय इन पावर? कर्नाटका में है और हिमाचल प्रदेश में है। कर्नाटका भी हाथ से जाएगा। तेलंगाना सॉरी, तेलंगाना में तो ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, तो कुछ बोल नहीं सकते। कोई बात कह रही है तो निश्चित तौर मुमताज पटेल यदि कोई बात कह रही है एक कार्यकर्ता के तौर पर, कुछ कमियां बता रही है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस पर संजीदगी से ध्यान भी देगी। वो चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि राहुल गांधी मेरे लीडर है, हम राहुल गांधी हमारे लीडर है, हम इस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बैठे। वो तो ये भी कह रही है राहुल गांधी एक लीडर है और उनकी एक कोटरी है, बस वो उनको घेरी रहती है, बाकी लोग उनके पास ही नहीं आ पाते। वो तो ये भी कह रही है। एनीवे, so the point is that everyone has heard the interview. We have heard what the BJP had to say. We have heard, well, not what the Congress had to say, but at least people who support the Congress had to say. So we've heard all sides. We'll let our viewers decide on what the state of the Congress party is in this country right now. But